ठीक है. Okay, sir. Now, as a introduction to this chapter solid state, आप मान के चलो कि ओवरऑल छोटा ही चैप्टर है. It shouldn't take more than 4 lectures to complete this. And at the same time, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में एक isolated topic है. Like it does not relate much with the previous topics. On top of that, it is a fairly easy topic. Like the kind of concepts that you are going to study and the kind of problems that you are going to see aren't quite difficult. And over years exam में भी जो इसके questions आप notice करोगे तो वो pretty much standard से ही format में पूछे जाते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत newness होती है उन questions में, but the underlying concepts remain the same. So if you would have practiced the booklet के questions itself, so you should be in a really good position to attempt or answer the questions of this chapter for JEE Advanced as well. ठीक है. Yes, sir. Now, जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा थियोरेटिकल है, तो इट वुड नीड दैट क्विक रन थ्रू ऑफ दोज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स. तो नोटिस करना, द चैप्टर स्टार्ट्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है, देयर आर मेनी क्लासिफिकेशंस दैट एग्जिस्ट of solids. This one is based upon their internal structure. We classify the solids into two types. There is crystalline and there is amorphous. Crystalline substances, as you can notice the example like diamond ya NaCl are those examples in which the atoms or ions present inside are present in a regular pattern of arrangement. Whereas amorphous solids, the ones that are there on the right hand side, as you can notice from the example like wood, rubber, are examples where the atoms or molecules do not have a regular pattern of arrangement. As a consequence, we also tend to write these crystalline solids as true solids and these amorphous solids as pseudo solids. ठीक है, यहाँ पर amorphous solids में एक noticeable example रहता है glass का. ठीक है, sometimes if the knowledge isn't there with students, so they tend to classify glass as a crystalline solid, but glass is actually amorphous in nature. ठीक है, it does not have a long range order. What do I mean by long range order versus short range order? ठीक है, crystalline substances में long range order present होता है, मतलब throughout the solid, the entire solid, there is a particular pattern of arrangement of atoms or ions that is followed. Amorphous substances में, amorphous solids में we say that there isn't an order. Like sometimes there is order also, but that is a short range only. तो कुछ pattern of arrangement मिलेगा, but in a small section of the solid, then there will be some another pattern, then there will be some other pattern, not a long range order. ठीक है. Now, having said this, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर नोटिस करना, आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड में आइस का एग्जांपल नोटिस करा? Yes, sir. Do you think फ्रिज में बनी हुई आइस क्रिस्टलाइन होती है? No, sir. Right, so यहाँ पर ये भी important aspect है नोट करने के लिए, that the crystalline solids, when have to be generated, when have to be created, they must be done so in controlled conditions. Otherwise, you end up making an extremely defective crystal, which is like an amorphous substance only. जैसे आपके फ्रिज में जो पानी है उसमें एयर के बबल्स भी होंगे, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी, एंड बहुत रैपिड कूलिंग करके आप उसको जमा रहे हो, तो इट इज हाईली अनलाइकली दैट इट विल एंड अप बीइंग अ
you know, Crystalline solid. overall a crystalline solid. There will be too many defects in that. ठीक है, वहीं पर जैसे स्नोफ्लेक्स बनते हैं, राइट, तो दैट स्मॉल स्केल पे we see that regular pattern of arrangement happening because of it happening in a very controlled slow manner. तो वो एग्जांपल्स होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के. ठीक है, सर प्लास्टिक बॉटल्स को किस में कंसिडर करेंगे? amorphous. Plastic is amorphous. ओके सर. As another important difference between crystalline and amorphous solids, notice करना, crystalline solids have a sharp melting point, whereas amorphous substances, they don't have a sharp melting point. मतलब कैसा रहता है, that आप एक, say for example crystalline substance को heat up कर रहे हो, like you are providing heat, तो उसका temperature बढ़ता जाता है. यस सर. Now what is observed in case of crystalline substances is that if you keep on adding heat, temperature keeps on increasing, but there comes a point, there comes a temperature जहां पर temperature further change होना बंद हो जाता है and the phase change starts to happen, like the heat supplied goes into changing the phase, liquid से solid से liquid, and that particular temperature at which this happens is called as the melting point of that solid. ऐसा ऑब्जर्वेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखने को मिलता है. अमॉर्फस सॉलिड्स में व्हाट हैपेंस इज दैट आप हीट करते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एंड व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट साथ ही साथ में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एंड एट सम पॉइंट इन टाइम मेल्टिंग भी शुरू हो जाएगी, फेज चेंज भी ऑब्जर्व होने लग जाएगा, बट टेम्परेचर स्टिल बढ़ता ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू हो गई जिसपे पूरा फेज चेंज ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है, इसको ग्राफिकली आप जैसे यहाँ पे नोटिस करोगे, ठीक है, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इट. इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से रीड करना, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है एंड एक्स एक्सिस पे वैसे तो टाइम है, बट यू कैन थिंक ऑफ इट दैट वी आर गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग, हीट सप्लाई करे जा रहे हैं. तो आपने लाइक हीट सप्लाई करा, ठीक है, तो हमारा सॉलिड जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बट देन एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगा जिस पे आप हीट सप्लाई करते जा रहे हो, बट स्टिल व्हाट यू ऑब्जर्व इज दैट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट ट्रांजिशन हो रहा है, जो मेरा सॉलिड है वो लिक्विड में जाते जा रहा है. ठीक है, एंड देन बियॉन्ड दैट टेम्परेचर, लाइक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में चला गया, अब आपने हीट करा तो फिर अब वापस से टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा लिक्विड फेज का. ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऑब्जर्व होगा. अमॉर्फस में कैसा हो रहा है, अमॉर्फस में सच ऑब्जर्वेशंस डजंट कम. लाइक आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, साथ में मेल्टिंग भी शुरू हो गई है, टेम्परेचर स्टिल बढ़ते ही जा रहा है, लाइक इस तरीके से देयर इज नो पर्टिकुलर और अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ऐसा क्यों हो रहा होगा, आई थिंक वो भी काफी इजीली अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज यहाँ पर इन केस ऑफ सॉलिड्स विच आर क्रिस्टलाइन देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट. तो जो बाइंडिंग फोर्स है, जो लैटिस एनर्जी होगी या जो भी बाइंडिंग फोर्स होगा विच इज कीपिंग दैट atoms or molecules together, it would be uniform throughout because of the regular pattern of arrangement. So if you would want to overcome that force, overcome that binding force, right, a particular amount of energy would be required in doing that. Whereas in amorphous solids, because there isn't a regular pattern of arrangement, कहीं जगह पर ज्यादा बाइंडिंग फोर्स होगा, कहीं पर कम बाइंडिंग फोर्स होगा, राइट, देयर इजंट अ यूनिफॉर्म बाइंडिंग फोर्स थ्रू आउट द सॉलिड. तो आप हीट सप्लाई करते जा रहे हो तो कहीं पर लाइक मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, कहीं पर नहीं होगी, कहीं पर टेम्परेचर स्टिल बढ़ता रहेगा, राइट, एंड सच ट्रांजिशन वुड बी ऑब्जर्व्ड. समझ में आया ये? यस सर.
Then there is another important difference that is between the crystalline and amorphous solids. ठीक है, इसे हम कहते हैं anisotropic versus isotropic. Now, what do I mean by this anisotropic versus isotropic? तो आप नोटिस करना that anisotropic वर्ड का मीनिंग होता है different properties in different direction, whereas isotropic वर्ड का मीनिंग होता है same property like on an average in all directions. Now what do I mean by this? Observe करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी हम लोग नोटिस कर रहे हैं लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ. नाउ इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कैसा है, देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट. अब बिकॉज ऑफ दैट रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इसमें नोटिस करो, अलोंग द एक्स एक्सिस एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम हो, अलोंग द वाई एक्सिस हो सकता है एटम्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो. ठीक है, बिकॉज दैट विल डिपेंड अपॉन द सॉलिड, कैसा उसके अंदर अरेंजमेंट है. नाउ इफ दिस इज द एंटायर पैटर्न दैट इज फॉलोड थ्रू आउट द सॉलिड, लाइक एक्स एक्सिस के अलोंग कम स्पेसिंग है, वाई एक्सिस के अलोंग ज्यादा स्पेसिंग है, देन प्रॉपर्टीज लाइक दिस मैकेनिकल स्ट्रेंथ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, दे माइट वेरी विद द डायरेक्शन. राइट, हो सकता है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के अलोंग ज्यादा अच्छा मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो बिकॉज ऑफ द क्लोज पैकिंग एज कंपेयर टू वाई डायरेक्शन के अलोंग. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ सच नेचर वी से दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर anisotropic in nature. Whereas when you talk about the amorphous solids, इनमें कैसा है? In case of amorphous solids, the randomness that is there makes it in such a manner that properties will be having on an average a same value in all directions, similar to like how a gas exerts uniform pressure in all direction. राइट, इंडिविजुअल जो एटम या मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड, उनका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, बट हम नोटिस करते हैं ना दैट ऑन एन एवरेज देयर इज नो डायरेक्शनल बायस. Yes, sir. राइट, ऑन एन एवरेज द प्रेशर एक्सर्टेड इज यूनिफॉर्म. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अमॉर्फस सब्सटेंस में आइसोट्रोपिक नेचर रहता है. ठीक है, Yes, sir. नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, इसी में एज अ डिफरेंस क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसा रहेगा. ठीक है, सो यहाँ पर ये ऑब्जर्व इस तरीके से करना होता है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट crystalline substances, when they are broken down into smaller pieces, तो जो नए पीसेस जनरेट होते हैं उनके जो सरफेसेस होते हैं वो रेगुलर होते हैं, स्मूथ होते हैं, बिकॉज द वे इन विच द crystalline substance absorb the stress or the mechanical force that is acted upon them, they tend to cleave along particular directions, along particular planes. Whereas amorphous substances में ऐसा कोई regular pattern of arrangement नहीं होता है, तो randomly the particles break down and as a consequence जो surface generate होते हैं वो smooth नहीं होते हैं. ठीक है, this is at a microscopic level, at an atomic level. Yes, sir.
एंड देन द लास्ट वन इज फेयरली अंडरस्टैंडेबल, हीट ऑफ फ्यूजन. वो मतलब ऊपर ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर एक डेफिनेट अमाउंट चाहिए होता है, यहाँ पर ऐसा कोई रेंज में वैल्यूज चाहिए होती है, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं चाहिए होता, बिकॉज ऑफ द वे इन विच देयर अरेंजमेंट आर. ठीक है. नाउ इस पर्टिकुलर चैप्टर में सॉलिड स्टेट में आवर फोकस विल बी ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट. सो लेट्स डीप डाइव इनटू क्लासिफाइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. एंड यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हमने करा है, दैट इज बेस्ड अपॉन देयर binding force, the binding force that keeps those atoms or molecules together. Now based upon that आप notice करना है, यहाँ पर हम लोग 4 categories of crystalline solids देखेंगे. What are those 4 categories? You have molecular solids, ionic solids, metallic solids, and covalent network solids. The classification is based upon the binding force that is present in them. तो यहाँ पे आप notice करना, एक एक करके examples देखते हैं. Let's start from the bottom. You have covalent network solids. Like the example there in front of you would be something like diamond. ठीक है, या फिर से ग्रेफाइट, या फिर ऐसे ये सिलिकॉन कार्बाइड या क्वार्ट्ज. इसमें कैसा हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एटम्स हैं, और उनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, द वन विच इज कीपिंग देम टुगेदर, इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. इन केस ऑफ मेटालिक सॉलिड्स, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, लाइक एग्जांपल बीइंग आयरन, कॉपर, सिल्वर, राइट. इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मेटल एटम्स देमसेल्व्स. नाउ समटाइम्स इन मेटल एटम्स को जस्ट मेटल एटम्स लिखने की जगह आपने यहाँ पे नोटिस करा, एक फैंसी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ delocalized electrons. Now that description is because of a important difference between these metallic solids and covalent network solids. From the point of view of electrical conductivity, is diamond a good conductor of electricity? No. No. Is metal like iron or copper a good conductor of electricity? Yes, sir. Yes. Yes. Sir. तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में है तो atoms ही that are bonding So with free electrons. So free electrons are the distinguishers. correct. So जैसे डायमंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर प्रिटी लोकलाइज्ड, मतलब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दे आर प्रिटी मच लोकलाइज्ड. वो उस रीजन को, बिटवीन दोस कार्बन एटम्स के रीजन को छोड़ के इधर उधर नहीं भाग पा रहा है. ठीक है. बट इन केस ऑफ मेटल solids, metallic solids, the electrons which are present between these metal atoms, these valence electrons, which are responsible for what we are calling as metallic bonding, they are pretty much easy to move. They are pretty much delocalizable. So what happens if you apply a small potential difference also across the metal, these electrons can very easily move from one region to another region. That's why this description is there, positive ions in a sea of delocalized electrons. Okay. Then you have ionic solids. इसमें notice करना, the constituent particles are ions themselves, cations and anions, and the force that keeps them together is the electrostatic force of attraction between these ions. ठीक है. इस चैप्टर में ज्यादा फोकस हमारा इन दोनों कैटेगरी पर रहेगा, मेटालिक सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड. दीज विल बी आवर की फोकस. इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. Yes, sir.
ठीक है, थोड़ा बहुत डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में भी बताऊंगा मैं, ठीक है, बट मेजर फोकस यही रहेगा. Then there are these molecular solids also. These are those solids in which the constituent particles are molecules and they have the following attractive forces that keep them together. जैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड में आप नोटिस करोगे, the classic example is ice या फिर solid HF. तो इसमें H2O molecules जो होते हैं आपस में they are bonded with hydrogen bonds. ठीक है, within H2O molecule तो covalent bond है, बट जो सॉलिड बनाने वाला फोर्स है वो तो मॉलिक्यूल्स को आपस में साथ में रखने वाला फोर्स है ना, और वो क्या है? हाइड्रोजन वो बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, वैसे ही देन देयर आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिडिफाइड SO2 या सॉलिडिफाइड HCl. तो इसमें क्या होता है, HCl और HCl मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहता है. तो दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड इनके बीच के जो attraction होंगे they are dipole dipole attractions and hence they are called as polar molecular solids. But sir, if we take them in a bulk, the dipole dipole interaction should disappear. If we take them in what? In bulk. Bulk, why will they disappear? Sir, since these are vector quantities, सर बहुत से अलग अलग डायरेक्शन में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगे तो कैसे चलेगा? नहीं तो ये अलाइन होंगे ना. देखो, अगर गैस के फॉर्म में आप सोच रहे हो तो यस यू आर राइट, ठीक है. यस सर. बट हम लोग इनको ऐसी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में लेके आते हैं ना जहां पर वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू अलाइन इन सच अ मैनर दैट दे कैन फॉर्म सॉलिड्स. अगर मैं HCl गैस की बात करूंगा तो हाँ, मतलब ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर घूम रहे होंगे, झूम रहे होंगे. यस सर. I will have to decrease temperature, I will have to increase pressure to liquefy them, then to further solidify them, such that there is this regular pattern of arrangement that they then follow. Yes sir. ठीक है? Yes sir. है ना? Yes sir. तो वापस से नोटिस करो यहाँ पे राजा, SO2 जो है वो तो कोवेलेंट कंपाउंड है. Yes sir. मैं वो नहीं मना कर रहा हूँ कि SO2 कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है. मैं कह रहा हूँ कि बिटवीन SO2 मॉलिक्यूल, ये एक SO2 मॉलिक्यूल हो गया, राइट, ये दूसरा SO2 मॉलिक्यूल हो गया, राइट. तो इनके बीच में क्या हो रहा है? लाइक ये इनका ऐसे आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्ट कर रहा होगा ना. Yes sir. पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड. तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो तो ये लंदन डिस्पर्जन, ये वंडर वॉल फोर्सेस ही हैं. Yes sir. ठीक है. As a matter of fact, what we see is that even the non-polar species, they can be liquefied or solidified. So, for example, hydrogen gas can be solidified below 12 Kelvin temperatures. So the force that is actually keeping those H2 molecules together is the induced dipole van der Waals force या लंदन डिस्पर्जन फोर्स हम बोलते हैं जिसको. ठीक है. और ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम लोग कैटेगरी में क्या डालते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. Yes sir. ठीक है. इन सब की ये फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट समझ में आएगा आप लोगों को? एक बार Yes, sir. बात कर लो. इसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो. सर आपने वो एक बार क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के एग्जांपल से एक ही लिखवा दिए थे ना उसमें? मतलब
मतलब ऊपर आपने जो डिफरेंशिएशन लिखा था ना, उसमें आपने एग्जांपल्स लिखे थे नीचे। हाँ, अच्छा ओके सर, हाँ यस सर, मैंने नोटिस किया, सॉरी। यहाँ पे भी लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं। ठीक है, डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं? यस सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, so with this classification, let's also understand some terms and definitions that are used in this chapter when describing these crystalline solids. तो यहाँ पे मैं आपके सामने 4 टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्या क्या है टर्म्स? पहला टर्म नोटिस करना, दिस इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। व्हाट डज इट मीन? बेसिकली regular 3D arrangement of particles, that is what is called as a lattice or a space lattice or a crystal lattice. Now in this regular pattern of arrangement of particles, we have lattice point or lattice positions. Those are positions or locations that are occupied by the particles. Then you have interstitial sites or void sites, and those will be the empty space present between the lattice positions. Okay. And then there is what we call as unit cell. Okay. Unit cell is something which you can, in a very simple definition, describe in the following manner. It is the smallest portion of the crystal lattice which, when repeated in different directions, generates the entire lattice. राइट, सो यहाँ पर जैसे आप नोटिस करोगे, इस क्रिस्टल में अगर मैं ये छोटा ऑरेंज क्यूब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊं ऊपर नीचे आगे पीछे, तो मेरा ओवरऑल ये लैटिस जनरेट हो जाएगा। यस सर। So this is going to be the unit cell. Now the reason why unit cell is important to us is because the unit cell is going to be what makes up the entire lattice. So if we study a unit cell properly, then we will study the lattice properly. Right? So our key focus will be to study these unit cells. Yes, sir. Now when we describe unit cells, तो यहाँ पर notice करना, the unit cells are described using 3 parameters. ठीक है, one is जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो मैं थोड़ा देर बाद लिखूंगा, मतलब लिखा हुआ मिलेगा आपको। दैट इज लोकेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा नहीं है, आप इस तरीके से मान लो, दैट इज लाइक लैटिस पोजिशंस, कहाँ कहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होंगे। देन based upon those positions, what is the length of the unit cell, length of the edges of the unit cell that we come across, and angles between those edges. These are some crucial parameters which help study a unit cell, help describe a unit cell. Depending upon these parameters, we are able to differentiate between different types of unit cells. ठीक है, जरूरी थोड़ा हर यूनिट सेल ऐसा ही दिखे, जरूरी है कि हर यूनिट सेल ऐसा ही दिखे? ठीक है, क्रिस्टल में और भी तरीके के रेगुलर पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं ना? यस सर, थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है।
राइट. सो क्या दो, बकी बॉल जैसा भी हो सकता है? हाँ, तो those differentiations are based upon these unit cell parameters. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इस तरीके से एक लिख सकते हैं, इसके बीच में एक लाइन, दैट नॉट ऑल सर हमें ये मतलब ऐसे अलग अलग केसेस याद रखने क्या, जिनमें से एंगल्स अलग होंगे और एज लेंथ अलग होंगे? बिल्कुल. ठीक है. सो नॉट ऑल यूनिट सेल्स आर आइडेंटिकल. ठीक है. दे वेरी from each other based upon these unit cell parameters. क्या है ये? एज लेंथ एंड एंगल्स बिटवीन एजेस. राइट. तो जैसे यहाँ पर एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है यूनिट सेल का, तो उसमें 3 एजेस डिस्क्राइबिंग द 3 डायमेंशनल नेचर ऑफ यूनिट सेल. ठीक है. जो 3D यूनिट सेल्स होते हैं, उसके 3 डायमेंशनल नेचर को डिस्क्राइब करते हुए 3 एजेस होंगी ABC, एंड उन एजेस के बीच के एंगल्स होंगे. ठीक है. एंड ऐसा कोई यहाँ पे डायग्राम देख के शायद आपको लग रहा हो कि अरे ये तो 90 डिग्री के एंगल्स है ना, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. देयर इज नो नेसेसिटी फॉर देम टू बी 90 डिग्री. ऐसा डायग्राम देख के आपको लग रहा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक डायग्राम बनाना ही पड़ेगा. यस सर. ठीक है. आई थिंक बेटर डायग्राम होता इफ आई वुड हैव से ड्रॉन समथिंग लाइक, कहाँ गया ड्राई क्लिनिक वाला, समथिंग लाइक दिस, then you would have not had any preconceived notion in mind. ठीक है. तो इसमें 3 एजेस जो होती है उनका नोमेनक्लेचर जरूर नोटिस करना. दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल ABC एंड द एंगल्स आर डिनोटेड बाय अल्फा बीटा गामा. एंड यहाँ पे भी अल्फा विल बी द एंगल बिटवीन एज B एंड C, बीटा विल बी द एज बिटवीन C and A, and gamma will be the angle between edge A and B. ठीक है. नोमेनक्लेचर है यहाँ पे, फिक्स्ड है, यस इस सर. तरीके से लिखना होता है. ठीक है. नाउ नोटिस करना that based upon these edge lengths and angles between edges, we come across 7 crystal systems. ठीक है. आपके दिमाग में डेफिनेटली एक थॉट प्रोसेस होगा कि ये 7 ही क्यों, कहां से आ रहा है. ठीक है. तो इसके पीछे का बैकग्राउंड लाइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, विच इज नॉट रियली वर्थ exploring right now. It is not part of your syllabus. So this we take up as a known piece of information with us, that there are 7 crystal systems that we come across based upon these unit cell parameters. Which unit cell parameters? The edge lengths and the angles between them. ठीक है. यस सर. अब ये जो 7 crystal systems हैं, ये आपको रट्टा मारने पड़ता है. ठीक है. एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली रट्टा मारने पड़ेंगे. ठीक है. सबसे सिंपल तो आसान तो याद होता है क्यूबिक करना. ठीक है. इसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, द सिंपलेस्ट काइंड. ठीक है. ओ अच्छा, हाँ, क्लास तो खत्म हो गई ना, 7:15 तक ही है. माय बैड. चलो इसके आगे से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं. तो नोट्स भेज देना. हाँ, मैं इसके नोट्स भेज दूंगा आप लोगों को.
ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।